Hello and welcome to Shiv Jyoti Educational Group Kota. This is Barkha Gaur, your biology teacher. Students, today in this video we are going to revise two chapters, that is chapter 10 and 11 of your biology book. The first chapter that we are going to discuss is, we are going to revise is microbes in human welfare, and the second one will be biotechnology, its principles and processes. So let's begin with the chapter number 10. We will be discussing important points, and you can note down these points or you can mark these points in your book. So let's begin with the topics of this chapter. So as children, you know, you are familiar with the microbes in human welfare. We will be dealing with the important points, and those important points are that the use of or the application of microbes in household production. Household में हम क्या कैसे कैसे microbes को use कर सकते हैं. Microbes in industrial products like fermented beverages, antibiotic production, chemicals, enzymes and other bioactive molecules किस तरह से बनाए जाते हैं वो देखेंगे हम. Microbes in sewage treatment, microbes in production of biogas, biocontrol agents and biofertilizers. So children, you are familiar with the word microbes. Microbes are the microorganisms which are present around us. They are found in all kinds of habitat. This all things we have discussed in the detailed video. Now we will just revise the important points. So children, let us see the use of microbes in household products. As you know, सबसे सिंपल चीज़ है जो हम देखते हैं कर्ड में, we use microbes for making curd, and what you have to remember is the bacteria which is used for it. तो it is lactobacillus. तो lactobacillus, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं, we are studying कि which microbes are used in which kind of products. तो lactobacillus या lacto acid bacteria is, ये क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है. तो कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. वी नीड इनोक्यूलम. जब भी हमें कर्ड बनाना है तो हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड वी पुट इन द वार्म मिल्क विच इज कॉल्ड इनोक्यूलम. तो वी नीड इनोक्यूलम टू प्रोड्यूस कर्ड. और कर्ड की न्यूट्रिशनल वैल्यू, इट हैज वेरी मच न्यूट्रिशनल वैल्यू ड्यू टू विच वी यूज कर्ड. पर्टिकुलरली विटामिन B12 is present in this curd. Second हम देखें in household product डो. ठीक है, ब्रेड वगैरह में या डोसा इडली बनाते हैं. In this dough is used, which is also produced by bacteria. Another Saccharomyces. One of the microorganisms, Saccharomyces cerevisiae. It is also known as baker's yeast. So this is one of the microorganism which is used in household. So this is baker's yeast. Other uses we have, जैसे toddy. Toddy बनाया जाता है by fermentation, fermenting sap from palm tree. Palms जो होते हैं, palm tree से इसके फर्मेंट करके इसको एक ड्रिंक बनाया जाता है विच इज नोन एज टोडी. सिमिलरली चीज इज ऑल्सो मेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. पर्टिकुलरली स्विस चीज की अगर हम बात करें तो स्विस चीज के लिए जो माइक्रोब हम यूज कर सकते हैं दैट इज प्रोपियोनिबैक्टीरियम. प्रोपियोनिबैक्टीरियम. तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी इसका फुल नेम है ये. So children, the important thing is that you have to remember the name of microbes which are used in different purposes. ठीक है. Now we'll understand the microbes in industrial products. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मीन्स लार्ज स्केल पर जब हमें कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं देन इट इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. तो लार्ज स्केल में के लिए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड फर्मेंटर्स. फर्मेंटर्स यूज होते हैं जो लार्ज वेसल्स हैं विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सच प्रोडक्ट्स इन लार्ज स्केल. तो फॉर एग्जाम्पल फर्मेंटेड बेवरेजेस होते हैं जैसे कि
fermented beverages are produced with this process with the help of yeast. ठीक है, again you have to remember the name of the yeast, Saccharomyces shermani. Sorry, Saccharomyces cerevisiae. ठीक है, Saccharomyces cerevisiae is baker yeast also and it is used for preparing beverages also. तो brewers yeast कहते हैं इसको, brewers yeast as well as baker's yeast, both दोनों में यही काम आएगा. It is also used in fermenting malted cereal fruits and juices and also it is used in preparation of ethanol. ethanol बना सकते हैं and particularly two process है, एक तो अगर distillation से हम use करेंगे तो wine and beer are produced without distillation. तो the process में जो difference है वो आपको याद रखना है. Without distillation wine and beer can be produced, and if we are undergoing distillation then whiskey, brandy and rum. These beverages are prepared with distillation. Okay, so you have to remember these things. तो ये हुआ हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में fermented beverages. Another is antibiotics. Antibiotics, children, you know the medicines which work against the pathogens. Pathogens के against ये work करते हैं, against the life of the pathogen. That's why they are called antibiotics. आपको मालूम ही होगा, first antibiotic was penicillin. First antibiotic was penicillin, which was produced from the fungus Penicillium notatum. ठीक है ना? So this was the first antibiotic and it was discovered by Alexander Fleming. So there are certain antibiotics, आपको नाम भी आप सुनते होंगे whenever you bring the medicines like streptomycin, neomycin, tetracycline, erythromycin, bezisterin. So there are various antibiotics which can be produced by the help of microbes. Now the next thing, microbes का industrial production में ही काम में आते हैं chemicals, to prepare certain chemicals, enzymes and bioactive molecules. This topic is also given in your book. You can refer your book on page number 182 and 183. So one by one we will take. First of all we will see chemicals. कौन से chemicals produce किए जा सकते हैं? तो they are in the form of organic acids. Organic acids में like citric acid, which is produced with the help of, हम यहाँ पे microbes का नाम लिखेंगे, Aspergillus niger. ठीक है, you have to remember this. You can also make table like this और tabular form में या list के form में आप इसको learn कर सकते हैं. Acetic acid is produced by Acetobacter aceti. One more, butyric acid. All these examples are given in your book also, bachcho. So go through the book also. Clostridium, it is prepared from Clostridium butylicum.
ओके, अनदर लैक्टिक एसिड, जैसे अभी हमने देखा ही था, लैक्टिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लैक्टोबैसिलस. So these are the certain chemicals which are prepared by these microbes. Now we'll discuss the enzymes. अब हम enzymes देखते हैं, कौन से enzymes हम बना सकते हैं and what are their uses and from which microbes they are formed. Enzymes में first of all we'll see lipase. ठीक है, lipase enzyme है which is used in detergent. डिटर्जेंट्स में यूज होता है, ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन कह सकते हैं हम, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज होता है एंड इट इज यूज्ड टू रिमूव ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ्स. देन पेक्टिनेज एंड proteases. These enzymes are produced to clear the bottled juice, to clear the bottled, जो बॉटल में हम पैक्ड जूस लेकर आते हैं उसमें बिल्कुल भी फाइबर्स नहीं होते हैं, तो these fibers are digested with the help of these pectinase and proteases. One more, streptokinase. Streptokinase is produced by Streptococcus. Streptococcus bacteria से मिलेगा हमें and this streptokinase is used as clot buster. बच्चों it's important, all these names are important and एक ना एक इसमें से एग्जाम में ज़रूर आता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसमें किसका यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो क्लॉट बस्टर का क्या मतलब है बच्चों? क्लॉट बस्टर मीन्स ब्लड में अगर क्लॉटिंग हो जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम काम में लेते हैं. नाउ देयर आर सर्टेन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आल्सो व्हिच यू शुड रिमेंबर. बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए. ठीक है, cyclosporin A which is produced by a fungi and the name of the fungi is Trichoderma polysporum. ठीक है, ये फंगस का नेम है. Now how it works, या इसका क्या यूज है? It is used as an immunosuppressant, an immunosuppressant. इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए. सपोज कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो हमारी बॉडी क्या उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसको रिजेक्ट करती है, तो इफ वी विल सप्रेस आवर इम्यून सिस्टम तो इट विल इजीली एक्सेप्ट इट. वन मोर इज देयर, इट इज मोनास्कस. स्टैटिन्स बनाए जाते हैं, स्टैटिन्स है ना. स्टैटिन्स आर ऑल्सो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम Monascus purpureus. So this is the name of microbe and it is used as blood cholesterol lowering agents. Blood cholesterol lowering agent. ठीक है, so all these are some of the enzymes and these are the bioactive molecules which are prepared with the help of microbes. The next topic is use of microbes in सीवेज इंडस्ट्री, सीवेज ट्रीटमेंट. ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे हम यूज कर सकते हैं, तो लेट अस रिवाइज दिस. माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, पेज नंबर 183 and 184. So first of all, microbes in
sewage treatment. So let us understand the steps which are involved in this sewage treatment. There are two steps: primary treatment. So first we will understand the primary treatment. The primary treatment is a kind of physical treatment in which two processes are involved: filtration and second is sedimentation. फिल्ट्रेशन में जो फ्लोटिंग डेब्रीज होती है बच्चों, फ्लोटिंग डेब्रीज, ठीक है, दे आर, जो फ्लोट करते रहते हैं, दे आर फिल्टर्ड थ्रू द फिल्ट्रेशन, एंड जो पेबल्स हैं या हैवी पार्टिकल्स हैं, दे आर सेटल डाउन, सेडिमेंटेशन में दे सेटल डाउन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है, एंड इट इज फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स विच आर लार्ज एंड स्मॉल, ठीक है। देन ऑल द सॉलिड्स, जो सारा सॉलिड जो सेटल डाउन हो जाता है, सॉलिड सेटल्स, उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्लज, इट इज नोन एज प्राइमरी स्लज, ठीक है। तो एक चीज तो प्राइमरी स्लज का फॉर्मेशन होगा, एंड अनदर थिंग इफ्लुएंट, जो सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट जो फ्लोट करेगा उससे बनेगा इफ्लुएंट, ठीक है। ये स्टेप्स अच्छी तरह लर्न होने चाहिए। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, जिसमें कि सॉलिड जो सेटल डाउन हो जाता है उसको प्राइमरी स्लज कहते हैं, एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट। नाउ दिस इफ्लुएंट इज सेंट फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसको हम किसके लिए यूज करेंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। वी विल सेंड इट फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। नाउ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसा है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है बच्चों, इट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसा था? फिजिकल। तो नाउ सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भी दो स्टेप्स हैं, वन इज एनारोबिक ट्रीटमेंट एंड अनदर इज एरोबिक ट्रीटमेंट। तो पहले हम देखेंगे एरोबिक ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले ये जो इफ्लुएंट है, दिस इफ्लुएंट इज पास्ड, इसको हम सेंड करेंगे लार्ज एरिएशन टैंक्स में। लार्ज एरिएशन टैंक्स में इनको भेज दिया जाता है, जहाँ पे एयर ब्लो करके, एंड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी, माइक्रोब्स को हम इसमें भेजते हैं, एंड दे फॉर्म फ्लॉक्स। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है फ्लॉक्स, ठीक है। व्हाट डज दिस फ्लॉक्स मीन्स? जो फंगल फिलामेंट्स होते हैं वो बैक्टीरिया के से मिलकर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जाली जैसी बना लेते हैं, विच इज डिपॉजिटेड ओवर द सीवेज वाटर। तो दैट इज कॉल्ड फ्लॉक्स। दैट मीन्स masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh like structure. तो this is what flocks. अब ये जो हमें मिला है, this will be used to check the BOD. Again it is very important. हम देखते हैं what is BOD. The full form of BOD. BOD पे से भी बेटा बहुत questions आते हैं. Many times the questions are coming. Biological ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जब तक वाटर पॉल्यूटेड है, सीवेज वाटर पॉल्यूटेड है, बीओडी विल बी मोर। तो बीओडी अगर ज्यादा है तो इट इंडिकेट्स दैट वाटर इज पॉल्यूटेड। तो एज वी हैव सीन फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होगा, तो स्लोली दीज बैक्टीरिया एंड फंगी दे विल डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर एंड स्लोली द बीओडी विल बी रिड्यूस्ड। तो बीओडी क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो बीओडी से हम टेस्ट कर सकते हैं
कि वाटर इज कितना पॉल्यूटेड है या कितने उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. तो BOD इज अ मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर. द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर, मोर इट इज पॉल्यूटिंग. नाउ BOD जो है, एक बार BOD रिड्यूस हो जाएगा, BOD कम हो जाएगा, तो जो ये सेडिमेंट है, this will be called as activated sludge. Activated sludge. ठीक है, इसको कहेंगे हम activated sludge. Now this activated sludge will be, मतलब हम ऐसे भी करते हैं, एक small amount of एक्टिवेटेड स्लज को हम वापस पीछे वाले टैंक में भेज देते हैं ताकि वो नेक्स्ट जो सीवेज वाटर आएगा उसके ट्रीटमेंट के लिए. अब जो रिमेनिंग स्लज है उसको कहेंगे एनएरोबिक. इट इज सेंट इनटू एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. ठीक है, दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जो पूरा है इसको स्टेप वाइज पूरा लर्न करेंगे आप. ठीक है, नाउ एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में इसको हम भेज देते हैं. एंड हेयर एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एनएरोबिक बैक्टीरिया विल ट्रीट दिस स्लज, इसको डाइजेस्ट करेंगे. एंड ड्यूरिंग दिस डाइजेशन द गैस इज प्रोड्यूस्ड विच कंटेन मेनली मीथेन, हाइड्रोजन एंड hydrogen sulfide, and carbon dioxide. तो these three gases are produced. तो mainly इसमें मीथेन है. तो ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, they form biogas. These are the constituent of biogas. तो आप जानते हैं ये बायोगैस का और दूसरे यूज भी होते हैं. इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल. ठीक है, तो इन दिस वे द ट्रीटमेंट इज डन, सीवेज ट्रीटमेंट इज डन. एंड नाउ द वाटर कैन बी सेंट इनटू द रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज. ठीक है, देन ऑन पेज 185 गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान इज गिवन. दीज प्लान्स वर लॉन्च्ड टू क्लीन द रिवर्स. हमारी जो होली रिवर्स है उनको क्लीन करने के लिए हमने ये प्लान्स बनाए थे. अनदर टॉपिक इज माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. तो बायोगैस में देखें, अभी जैसे मैंने आपको बताई दिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बायोगैस के, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस मेनली कंटेन बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड मीथेनोजेंस. इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? मीथेनोजेंस आर प्रेजेंट विच प्रोड्यूस मीथेन गैस. तो वन कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम. Methanobacterium. This is one of the methogen which helps in the formation of methane gas. अब मीथेन गैस कैसे प्रोड्यूस होती है? अच्छा, वन मोर थिंग कि मिथेनोजेंस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन या स्टमक, जिसको कहते हैं हम स्टमक ऑफ कैटल्स, है ना. कैटल्स की रूमेन में भी ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो कैटल्स में ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ओके, तो दीज मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन स्टमक ऑफ कैटल्स ऑल्सो विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज. एंड इसीलिए हम कहते हैं जो काउडंग होता है वो उससे गोबर गैस या बायोगैस बनाई जा सकती है. ठीक है, अगर बायोगैस के हम टैंक को देखें तो इट इज अ कॉन्क्रीट टैंक ऑफ 10 to 15 feet deep. Now what is done? You can see the figure 10.8 on page number 186. It is a typical biogas plant is given in which slurry is filled. What is slurry? मतलब thick liquid रहता है which is made from cow dung and it is filled in it. और उसके ऊपर ही एक floating lid लगाया जाता है. floating मतलब एक cover रहता है. Then there are different outlets for releasing gas and this gas is sent to the, it is supplied to the houses for lighting and for cooking. ठीक है. Another thing
जो ये स्लरी बच जाती है आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, द स्लरी विच इज लेफ्ट डाउन, इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। ओके, तो ये था हमारा बायोगैस प्रोडक्शन में। नाउ विल सी बायो कंट्रोल एजेंट्स। यूज ऑफ माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं, वी नो दैट दे आर वेरी हार्मफुल फॉर बायो कंट्रोल एजेंट्स। लाइक जैसे कीड़े वगैरह लग जाते हैं क्रॉप्स में, तो उनको किल करने के लिए द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स आर किल्ड विद द हेल्प ऑफ जनरली केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स हैं ये सब। बट वी कैन यूज सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ हम माइक्रोब्स को यूज करें which are helpful in destroying those pests and weeds. ठीक है, तो this is called what? Biocontrol agents. तो biocontrol of pests and diseases दोनों में ये काम आ सकते हैं, so that the diseases can be controlled which do not even pollute the environment. तो इसके लिए आप देखो पेज नंबर 187 पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सेकेंड पैराग्राफ में। सपोज बात करें बीटल, वी आर फैमिलियर विद द बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स का एक बीटल आता है जिसको हम कहते हैं लेडी बर्ड। ठीक है, तो लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज्ड टू गेट rid of aphids and mosquitoes. So to get rid of aphids and mosquitoes we can use these ladybirds and dragonflies. ठीक है, तो ये एक बायो कंट्रोल एजेंट्स हुआ। ऐसे ही इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए वी कैन यूज बैक्टीरिया बेसिलस thuringiensis, है ना, जो हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा भी है। ठीक है, तो बीटी जिसको हम कहते हैं, बीटी कैन बी यूज्ड एज फॉर कंट्रोलिंग कैटरपिलर्स, लार्वा कैटरपिलर्स जो रहते हैं उनसे बचने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज कर सकते हैं हमने बीटी वाले चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़ लिया है। अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं, फंगस ट्राइकोडर्मा। Fungus trichoderma is used, it is a free living species. Trichoderma species are free living which are very common in root ecosystem. So they are effective in controlling some plant pathogens. तो ये भी use कर सकते हैं। Then baculovirus. Baculoviruses also can be used as biocontrol agents for the attack of insects and arthropods. So इनसे बचने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसका सबसे फैमिलियर एग्जाम्पल है न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस है, सॉरी, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस। So it is a kind of baculovirus which help in work as biocontrol agents. ठीक है, now we'll see biocontrol agents तो हो गया। Then biofertilizers, how microbes can be used as biofertilizers. So biofertilizers are such fertilizers which are particularly used in organic farming. Organic farming में हम we will not use any of the chemical, ठीक है, fertilizers use नहीं करेंगे, chemical fertilizers, but और इससे क्या फायदा होगा, pollution also will be reduced. So such fertilizers which are used in organic farming are called biofertilizers because we are using some microbes to produce the fertilizers. For example, rhizobium से आप बहुत familiar हैं, it is the सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो राइजोबियम बैक्टीरियम है वो रहते हैं और दे हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यू आर फैमिलियर विद दिस एग्जांपल। अनदर फ्री लिविंग, ये तो क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होता है ना। एंड फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी हैं
living bacteria are also there, like Azotobacter. One of the example is Azotobacter and another is Azospirillum. Azospirillum. They also help in nitrogen fixation and they make the soil fertile. तो आपको पता ही है नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स. दूसरा एग्जाम्पल है माइकोराइजा. Mycorrhiza, which is also lives in symbiotic association. तो many members of genus Glomus, Glomus genus है, ये याद रखेंगे. Many species of genus Glomus form mycorrhiza. तो fungal symbiont in these associations absorb phosphorus from the soil and provide it to the plant. ठीक है, तो they also provide benefits in the form of they provide resistance to the root pathogens, जो root borne pathogens है, tolerance to salinity, drought and overall use of increase in the plant growth and उसको develop करने में help करते हैं. एक और example है cyanobacteria और blue green algae भी हम कह सकते हैं. They also help in fixation of atmospheric nitrogen like Anabina nostoc and Oscillatoria. Oscillatoria. तो चिल्ड्रन दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स विच हेल्प इन द मतलब ये बायो फर्टिलाइजर्स थे जो हेल्प करते हैं सॉइल को की फर्टिलिटी मेंटेन करने में. सो चिल्ड्रन दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. नाउ विल डिस्कस चैप्टर नंबर 11.